Hello everyone, this is Arijit. Welcome back to the Physics Enlight YouTube channel. So today we will discuss about the topic Gauss's law, which is the second lectures of our electrostatic series. And this series is going to help you for your examination IIT JAM, JEST and MSc entrances. So we will briefly discuss about the concepts. Then we will discuss about some important problems, right? So let's start. So what do you mean by electric flux, right? Flux. Let's discuss first. So flux is nothing but, let's say I have a closed surface is here, and let's say there is a point charge Q is placed here. Now electric field lines will be passing through this surface because electric field lines are diverging in nature for a point positive charges. Now flux is simply means by numbers of field lines passing through this area. That's it. Passing through the area, passing through the surface, right? So that is the geometrical meaning of the flux. But mathematically, let's say I have a point charge Q over here, and I have a spherical surface, which is also known as the Gaussian surface, right? Now let's say I want to calculate the flux for this infinitesimally small area, let's say ds, and electric field present is E. Okay, the electric field is E, and I want to calculate the flux over this infinitesimally small area. You all know that ds is a unit. Ds is a infinitesimally small area, which is a vector. We also known as the area vector, right? Area vector. Now the flux is given by mathematically phi is equals to E dot ds. E dot ds for this small area. Now if I want to calculate this for entire surface, let's say S, then I have to integrate over it. Otherwise E dot ds. The integration of S E dot ds is the total flux throughout this surface, enclosing this charge, let's say Q, right? Now, according to Gauss's law, this electrostatic flux, that is E dot ds integration of S, is given by Q enclosed by epsilon naught. Okay, epsilon naught is the permittivity of that medium, and QEN is equals to total charge enclosed within this surface known as Gaussian surface. E dot ds is equals to Q enclosed by epsilon naught. It's the Gauss's law. Okay, so flux is equals to Q enclosed by epsilon naught. Now if I E dot ds को मैं अगर divergence E dv लिख सकता हूँ by the help of divergence theorem. This surface integrate will be converted into volume integral, right? And Q enclosed को मैं लिख सकता हूँ rho dv by epsilon naught. So that will be essentially giving me divergence E is equals to rho by epsilon naught, which is nothing but the differential form of the Gauss's law, right? Differential form of the Gauss's law. Now we all know that E is equals to minus grad V, that is V is the potential, right? So I can replace the value of E over here, and I will get grad of minus grad V is equals to rho by epsilon naught, which is giving me grad square V is equals to minus rho by epsilon naught. This is also known as Poisson's equation, right? Poisson's equation, where V is the potential and rho is the volume charge density, and epsilon naught is the permittivity of free space. Now, if there is a no charge, let's say if there is a no charge, then charge density is 0. Then grad square V is equals to 0. This is known as Laplace equation. Laplace equation. So previous year's questions has been asked from this here and here, right? And Gauss's law से तो है ही है, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है? So this is the basic introductions of the Gauss's law, which is giving me the idea of the flux of a closed surfaces. Mind it, flux of a closed surface. Now let's discuss some important points regarding Gauss law, right? Give me a moment. Okay, so important points. First point, let's say Gauss's law is applicable to only closed surfaces, right? So the charge should be enclosed by any kind of surface, and that surface should be closed surface. First, closed surface होना चाहिए. Let's say I have a charge Q over here, and I have a charge placed in a spherical surfaces, or I have a charge Q over a I have a charge Q which encloses this cube. So it was initially sphere,
and this is, let's say, q. But total flux for the both cases is q by epsilon naught and q by epsilon naught. So you can see that this electrostatic flux is independent of the shape or size of the surfaces, right? So flux is independent of shape or size of the surface. तो सरफेस कैसा हो रहा है उस पे ऊपर फ्लक्स डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है क्यू एनक्लोज, मतलब उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, फ्लक्स उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ना कि वो सरफेस कैसा दिखने में है, राइट? तो इट डिपेंड्स ओनली द क्यू एनक्लोज. दैट्स व्हाई इन द फॉर्मूला, above formula, you can see that the flux E dot ds is the flux is q enclosed by epsilon naught. Mind it, this E is a electrostatic field, is a vector quantity, ds is also a vector quantity, so phi is the product of the two, dot product of the two vector quantities giving me the scalar. So phi is a scalar quantity. Now second point, first point is flux is independent of the surfaces, and it only depends on the charge enclosed, total charge enclosed within that surface. Now second point, let's say I have a charge q, right, which is placed at the center of a sphere. Now if I charge is replaced by the, let's say the sphere is replaced by a cube, the sphere is replaced by cube, that was the earlier discussion, the charge does not change. Now consider another situation, this charge is moved off the center, right? पहले ये चार्ज कहां पर था, सेंटर पे था. नाउ लेट्स से ये सेंटर पे था पहले, अब नाउ लेट्स से यहाँ पर है चार्ज, तो फ्लक्स का कोई चेंज होगा नहीं, फ्लक्स फिर भी 5 q by epsilon naught ही रहेगा, राइट? बिकॉज वो चार्ज, फ्लक्स डिपेंड नहीं करता कि चार्ज कहाँ पर है, सेंटर पे है या फिर कहीं पर भी है, तो सरफेस के अंदर होना चाहिए, दैट्स सरफेस के अंदर होना चाहिए. सो q by epsilon naught will be the answer, no matter it is on the center or it is placed over here or here or here, so flux will be q by epsilon naught. Third point is, if I move this charge outside this surface, let's say चार्ज को मैंने यहाँ पर कर दिया, तो देन फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि टोटल चार्ज एनक्लोज जीरो, तो गाउसेस लॉ से फ्लक्स जीरो आ जाएगा. नेक्स्ट, ये सेकेंड चार्ज प्लेस्ड, तो अगर सेकेंड चार्ज मैं इधर प्लेस करता हूँ, लेट्स से दो, पहले से एक चार्ज था, दूसरा चार्ज मैंने Q2 पुट कर दिया इधर, तो फ्लक्स का चेंज हो जाएगा. दैट डजंट सिंपली मीन्स कि फ्लक्स डिपेंड करता है कितना नंबर्स ऑफ चार्जेस, नेट चार्ज प्रेजेंट है within this Gaussian surface, right? That's it. यहाँ से आप different points को calculate कर सकते हैं. और mind it that E dot ds is equals to q epsilon by, this is the Gauss's law. This E dot ds, that is the flux. Let's say यहाँ पर एक चार्ज है और फ्लक्स क्या होगा, इस सरफेस एस के लिए होगा, फ्लक्स इस सरफेस एस के लिए होगा. मगर मान लो कि इस सरफेस के आउटसाइड में भी कुछ सारे इलेक्ट्रिक चार्जेस प्रेजेंट है, राइट? Q1 Q2 प्रेजेंट है. तो ये जो आपको लेफ्ट साइड पे दिख रहा है E dot ds का ये E, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड is due to the all charges that is inside this surface or outside all these surfaces. So this E electrostatic field is electric field due to the all charges present outside or inside the surfaces, but the flux is only due to this charge due to this surface A, right? तो ये आपको ध्यान रखना है कि फ्लक्स सिर्फ हम लोग क्लोज सरफेस के लिए निकाल रहे हैं, मगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी फॉर ऑल द आउटसाइड एंड इनसाइड surfaces. Okay. QE enclosed is the QEN is the charge enclosed within that surface. Now let's solve a question. So electric field components in the figures given by Ex is equals to 800 x square Newton per coulomb, right? So given in the questions 800 x square Newton per coulomb. EY EZ is 0. Calculate the flux through the cube and the charge within that cube. So देखो एक cube given है, cube का आपको EY और EZ कंपोनेंट जीरो है, मतलब दिस इज द x डायरेक्शन, सो EY और EZ कंपोनेंट पे नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज जीरो, राइट? EY एंड EZ इज जीरो. नाउ देखो तो EX पे सिर्फ EX पे प्रेजेंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, सिर्फ अलोंग EX. तो हमें फ्लक्स, हमें पता है EX डॉट ds करना होगा, तो ds कौन से डायरेक्शन पे होना चाहिए, सिर्फ I डायरेक्शन पे, बिकॉज अदर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा. अगर ds देखो, मान लो ये एक प्लेन है, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y. xy प्लेन का एरिया वेक्टर कहाँ होगा, z के अलोंग. xy प्लेन का एरिया वेक्टर होगा dA अलोंग विल बी अलोंग k कैप अलोंग द z एक्सिस.
सिमिलरली ये वाला सरफेस, ये वाला का एरिया वेक्टर इधर होगा दैट इज अलोंग एक्स, और ये वाला का इधर होगा दैट इज -x, और बाकी सारों का परपेंडिकुलर हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के लिए. सो ऑल द सरफेसेस एक्सेप्ट दिस शेडेड एंड दिस शेडेड विल लीड टू द फ्लक्स जीरो. सो सिर्फ हमें ये दो सरफेसेस के लिए फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि दिस आर अलोंग द दिस आर द अलोंग द यू नो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड डायरेक्शन. तो इसका जो एरिया वेक्टर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग, और इसका भी एरिया वेक्टर है जो एक्स एक्सिस के अलोंग, तो व्हिच इज द डायरेक्शंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑन ऑल द अदर सरफेसेस विल गिव मी जीरो फ्लक्स. दैट्स व्हाई यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, देखो. तो Ex का वैल्यू देखो गिवन है 800x² और ds इंटीग्रेशन ऑफ ds. अब पहला सरफेस के लिए निकाल रहा हूँ, लेट्स से दिस सरफेस के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ एक सेकंड. देखो ओके, सो ये वाला सरफेस पे x इज टू 0 है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड भी 0 होगा, क्योंकि इसका फंक्शन गिवन है 800x². तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट दिस पॉइंट is 0, that is for this surfaces electrostatic field is 0. So I am getting the flux only for this surface, right, only for this surface, so which is given by 800x² into ds. Now यहाँ पर अब देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, a है, इसका लेंथ a है, तो यू कैन पुट द वैल्यू, x की जगह आप a पुट कर सकते हैं क्योंकि क्यूब का साइड a है. तो फ्लक्स क्या होगा 800 इंटू a स्क्वायर इंटू ds. इंटीग्रेशन ds इज नथिंग बट द surface area of this of this square, that is also given by a square. So एक स्क्वायर आ गया आपका, x की जगह a पुट किया और एक स्क्वायर आ गया ds की वजह से. अब इसको वैल्यू पुट कीजिए 800 इंटू ए स्क्वायर. ए का वैल्यू गिवन होगा 0.1 मीटर्स, ठीक है, टू दी पावर 4. जो आंसर होगा वही, ठीक है, सॉल्व कर लीजिए. अब ये आ गया फ्लक्स, तो फ्लक्स आ गया विच इज नथिंग बट द क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट, और एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्यू एनक्लोज भी मिल जाएगा. दैट्स इट, वेरी इजी. Next, what is the flux through one surface of a cube of side A if a point charge q at the center of the cube? देखो आप लोगों को पता है, let's say this is a cube, right? ऐसा करके मेरे पास एक क्यूब है, ड्राइंग इज टू बैड. यहाँ पर सेंटर पे है एक चार्ज q, तो टोटल चार्ज एनक्लोज थ्रू दिस क्यूब इज q by epsilon naught, right? Now total, that is flux through the entire surface is q by epsilon naught. और एक क्यूब में कितना फेसेस होते हैं, 6. तो बोला है कि वन ऑफ द सर्फेसेस, एक सरफेस के अलोंग 6 सरफेस होता है टोटल, तो एक सरफेस के लिए क्या होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/6, क्योंकि टोटल फ्लक्स इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. 6 फेसेस के अंदर जा रहे क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, एक फेसेस के अलोंग और एक सरफेस के अलोंग होगा क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट. दैट्स इट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द वन सरफेस ऑफ द क्यूब इफ द पॉइंट चार्ज क्यू एट द कॉर्नर्स. देखो अब पहले क्या था, चार्ज कहाँ पर था, सेंटर पे था. अब नाउ चार्ज कहाँ पर है, अब चार्ज कॉर्नर पे है, क्यूब के कॉर्नर पे, देखो यहाँ पर है. नाउ इमेजिन करो, तो गाउस लॉ एप्लीकेबल होने के लिए क्लोज सरफेस चाहिए, पहले ही डिस्कस किया था. क्लोज सरफेस, द सरफेस शुड बी क्लोज्ड, राइट. नाउ यहाँ पर ये चार्ज कॉर्नर पे है, तो दिस इज नॉट ए क्लोज सरफेस. तो इस चार्ज को क्लोज करने के लिए कितना और क्यूब चाहिए. देखो मान लो ये वाला चार्ज इधर था, 1 2 3 4 और इधर 5 6 7, और वो वाला उधर जो दिखाई नहीं दे रहा है दैट इज 8 क्यूब. तो एक कॉर्नर पे अगर चार्ज रहेगा तो इस चार्ज को एनक्लोज करने के लिए 8 क्यूब चाहिए, ठीक है. तो इस तो बताओ, तो टोटल 8 क्यूब के अंदर फ्लक्स कितना जाएगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब ऑफ साइड ए पॉइंट चार्ज क्यू एट द कॉर्नर्स. तो एक के लिए क्या होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. समझ में आया. तो इस चार्ज के क्लोज करने के लिए 8 क्यूब चाहिए, तो 8 क्यूब के अंदर जो फ्लक्स जाएगा दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट. तो हमें चाहिए इस वाले सिर्फ क्यूब के लिए, तो इसके लिए क्या होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट. दैट्स इट. नाउ थोड़ा क्यूब का और एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए. देखो सेम क्वेश्चन है,
तो क्यूब कहाँ पर एक कॉर्नर पे है, ठीक है, बट हमें पूछा है क्या, द फ्लक्स थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर थ्रू ए शेडेड साइड, ठीक है, शेडेड साइड के लिए क्या होगा, इसको आप इमेजिन कीजिए, ये वाला जो चार्ज है, राइट, इसके लिए कॉर्नर पे के लिए क्यू बाई हमें मिल रहा था 8 एप्सिलॉन नॉट। नाउ ये वाला चार्ज देखो तीन क्यूब के साथ अटैच्ड है, तीन क्यूब के साथ अटैच्ड है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू दिस एरिया वेक्टर। सो तीन क्यूब के लिए क्या होगा, फ्लक्स जीरो होगा, ये आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा। तो बाकी बचा कितना, 3। तो तीन के बाकी के तीन के लिए आपको फ्लक्स क्या होगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट सबके लिए था, तो उसके लिए 1/3 दैट इज क्यू बाई 24 एप्सिलॉन नॉट। यू हैव टू विजुअलाइज दिस थिंग, अदरवाइज यू कैन नॉट you know solve this question. Now flux through the cone, flux through the cone क्या होगा, देखो यहाँ पर एक चार्ज है, लेट्स से यहाँ पर एक चार्ज है Q, राइट, इस फ्लक्स, ये चार्ज इधर प्लेस्ड है, तो इस कोन के लिए इस, इस कोन के फ्लक्स के लिए हमें ये इनक्लोज करना पड़ेगा, बिकॉज गाउसेस लॉ अप्लाई ओनली फॉर द क्लोज सर्फेसेस। तो इसको इनक्लोज कर दिया ऊपर एक कोन बिठा के, तो टोटल पूरा कोन क्लोज सरफेस के लिए कितना आया, टोटल दोनों को मिला करके फ्लक्स आया क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ा क्यू है तो बड़ा कर लेते हैं, दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एक कोण के लिए क्या होगा, दो कोण के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, तो एक कोण के लिए हाफ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट। ऑल यू नीड टू डू टू क्लोजिंग दिस सरफेस, राइट। नाउ spherical symmetry, let's discuss spherical symmetry. So that is, you can also say the applications of the Gauss's law, applications of the Gauss's law, of Gauss's law. Let's say you have a point charge placed here, there is a spherical cell, स्फेरिकल सेल मान लो यहाँ पर चार्ज है, तो उसको आप ट्रीट कर सकते हो कि एंटायर चार्ज इज कंसंट्रेटेड एट दिस पॉइंट, दैट इज द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल सेल, राइट, दैट वी नो। सो मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स से इस पॉइंट पी पे मैं फ्लक्स देखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, एक गाउसियन सरफेस ड्रॉ करूंगा, ठीक है, जिसका रेडियस है मान लो स्मॉल आर, और ये वाला इसका जो स्फेरिकल सेल का है वो कैपिटल आर। So that is the Gaussian surface, this is the Gaussian surface, so I can write E dot ds is equals to q by epsilon naught, और E ds क्या होगा, 4 pi r square होगा, वो जो Gaussian surface है बाहर वाला उसका एरिया q by epsilon naught, so E is equals to simply q by 4 pi epsilon naught r square, that we know। और अंदर के लिए क्या होगा, किसी अंदर पॉइंट लेट से P यहाँ पर आ गया, तो इसके लिए क्या होगा, तो इस पॉइंट के लिए आप एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करो, ठीक है। सो यू कैन थिंक ऑफ the charges lies all outside, so the total enclosed charge is 0, so you can think of E dot ds is equals to 0, so E is equals to 0, so field due to the spherical cell at the inner point is 0, that is, let's say this is r is equals to r for like 1 by r square proportionally, right। तो ऐसे फील्ड फॉल करेगा बाहर की तरफ, दैट इज एट r ग्रेटर देन r, और अंदर में फील्ड 0 होगा स्फेरिकल सेल के लिए, बिकॉज अंदर कोई चार्ज एनक्लोज है ही नहीं गाउसियन सरफेस के अंदर। तो आप जस्ट बाहर वाले के लिए यहाँ पर अंदर चार्ज एनक्लोज था, बट अंदर के लिए कोई चार्ज एनक्लोज नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज 0 एट द इनसाइड, और 1 by q by 4 pi epsilon 0 at outside. Now let's discuss sphere, which is very important. Sphere, let's say this is a sphere, okay, this is a sphere. Now spheres के क्या है अंदर, this sphere is charge, let's say, ठीक है। sphere मतलब क्या है, स्फीयर और स्फेरिकल सेल में, स्फेरिकल सेल मतलब अंदर खाली है, मगर स्फीयर मतलब अंदर भी चार्ज रह सकता है, राइट। स्फीयर मतलब एक एंटायर पे पूरा चार्ज प्रेजेंट है। नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द फ्लक्स एट पॉइंट पी, सो व्हाट आई हैव टू डू ए ड्रॉ ए गाउसियन सरफेस। so let's say this sphere having radius r and this is small r, so is p के along again same process E into ds is equals to 4 q by epsilon naught। देखो इस सरफेस के चार्ज कितना इनक्लोज्ड है, एप्सिलॉन नॉट है, तो क्या होगा E into 4 pi r square into q by epsilon naught,
that is same as for the previous cases, right? That is when r greater than r, that is बाहर के पॉइंट्स में, स्फीयर के जो बाहर पॉइंट है वहां पर आपको ये मिल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड. नाउ आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट दिस फील्ड, to find out this field, find out the field at a point P which is placed inside the sphere. So मान लो यहाँ पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना चाहता हूँ. सो आई हैव टू ड्रॉ ए गाउसियन सरफेस लाइक दैट. इसका क्या होगा, रेडियस लेट से r, नाउ r लेस देन r. ठीक है, इसके लिए आप क्या करोगे, E इंटू 4πr², छोटा वाला इसके लिए. अब देखो इस छोटा वाला स्फीयर में कितना चार्ज एनक्लोज्ड है, तो रो डीवी आई कैन राइट रो डीवी बिकॉज इसका चार्ज डेंसिटी आपको पता है, और चार्ज डेंसिटी इज व्हाट, दैट इज Q बाई 4/3 पाई कैपिटल R क्यू. ठीक है, बड़ा वाला स्फीयर जो जो चार्ज है एक्चुअली ये वाला स्फीयर पे है, तो आई एम इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट द फील्ड एट दिस स्फीयर. नाउ E इज इक्वल्स टू आई कैन राइट रो इनटू डीवी की जगह आप लिख सकते हो 4πr² dr. ठीक है, ये आपको पता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में होता है 4πr² dr. तो जस्ट इंटीग्रेट इट ओवर 0 to r, और बाई आपके पास है 4πr². सो यू विल गेटिंग 4π कैंसिल हो गया, तो देखो क्या आया, E इज गिवन बाई 4π गया, तो रो इंटू r² dr का इंटीग्रेट करोगे तो r³/3, नीचे r² है और एप्सिलॉन नॉट तो है ही है, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट छूट गया. ठीक है, तो E इज गिवन बाई रो r/3 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, रो r/3 एप्सिलॉन नॉट. दिस इज फॉर द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ऑफ ए स्फीयर एट द पॉइंट r इज इक्वल्स टू r. तो इसका अगर ग्राफ आप ड्रॉ करोगे, देखो ये लिनियरली प्रोपोर्शनल हो रहा है, E बढ़ रहा है तो R भी R के साथ बढ़ रहा है, तो यू कैन थिंक ऑफ लिनियर वेरिएशंस. ठीक है, जब ये आ गया R इज इक्वल्स टू R, उसके बाद अगेन ये फॉल करना स्टार्ट करेगा. तो दिस इज द electrostatic field for a sphere, and this is minded, this is a non-conducting sphere, right? Non-conducting or dielectric you can say. Non-conducting इसलिए अंदर हमें एक फील्ड मिल रहा है. अगर कंडक्टिंग होता तो वैसे भी कंडक्टिंग अगर होता तो चार्ज सारे आउटसाइड पे आ जाएगा, तो फील्ड इनसाइड क्या होगा, जीरो हो जाएगा. वी नो दैट फॉर ए कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज इनसाइड एनी पॉइंट इज जीरो. सो दिस इज द केसेस व्हिच इज गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर एग्जामिनेशन. देखो ऐसे ही एक क्वेश्चन पूछा गया. सो आपके पास एक ऐसा करके एक एक्सप्रेशन गिवन है चार्ज डेंसिटी का r लेस देन r में एक स्फीयर के लिए, और आउटसाइड पॉइंट में जीरो है. तो आपको कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर इनसाइड पॉइंट, व्हिच इज वेरी इजी. जस्ट हम लोगों ने जस्ट किया, देखो E डॉट ds इज इक्वल्स टू Q एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट. Q एनक्लोज को लिख सकता हूँ रो इनटू dv बाई एप्सिलॉन नॉट. रो की जगह क्या लिख सकते हो, kr² इंटू 4πr² dr अगेन बाई एप्सिलॉन नॉट. और ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ तक, 0 to r तक, क्योंकि इनसाइड पॉइंट पे चाहिए. ये आपके पास एक स्फीयर गिवन है, तो इसके अंदर पॉइंट के लिए आपको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए. लेट्स से दिस इज r, दिस वाज कैपिटल R, राइट? सो यू कैन इंटीग्रेट. E डॉट ds क्या होगा, E इंटू अगेन 4πr², और इधर k बाई एप्सिलॉन नॉट 4πk बाई एप्सिलॉन नॉट. इसको इंटीग्रेट करो, r² 8⁴, तो 8⁵/5, राइट? तो इंटीग्रेट करोगे तो 8⁵/5 डायरेक्ट कर रहा हूँ. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल्स टू 4π कैंसिल्स हो गया, क्या आ गया, k बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 8⁵/5 r². आई बिलीव इट इज राइट. सो k r³/5 एप्सिलॉन नॉट. ठीक है, दैट्स इट. अब क्वेश्चन में क्या गिवन था, जो ऑप्शन आंसर था वो ऐसे नहीं था, वो Q के फॉर्म में था, राइट? Q के फॉर्म में था, तो आपको K को रिप्लेस करना पड़ेगा. तो आपको पता है Q इज इक्वल्स टू रो डीवी, तो आप क्या करोगे, रो डीवी, रो इज नथिंग बट द चार्ज डेंसिटी व्हिच इज गिवन एज kr², और dv क्या होगा 4πr² dr. अब ये टोटल चार्ज इनक्लोज्ड है, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन दैट गिवन स्फीयर. ठीक है, तो आप 0 to r को इंटीग्रेट कर सकते हो, क्या होगा 4πk r² 8⁴, that is 8⁵/5. Now you can replace the value of k in this formula. ठीक है,
यहाँ पर आप k को रिप्लेस कर सकते हो। k क्या होगा 5q, k का वैल्यू इधर से देखो k 5q क्या आ रहा है 5q/4 pi r⁵ बड़ा r, ठीक है। यहाँ पर बड़ा r है माइंड इट, क्योंकि दिस इज द रेडियस ऑफ द गिवन स्फीयर और ये छोटा r एट व्हिच वी आर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। k की जगह मैं लिख सकता हूँ 5q r³/5 × 4 pi r⁵। 5 कैंसिल हो गया तो आपका आ गया q r³/4 pi ε0 r⁵, ठीक है। तो देख लीजिएगा एक बार कैलकुलेशन, इज वेरी इजी। 5 r⁵. So this is the answer. This is the answer for the electrostatic field at a point, at an inside point of a sphere whose charge density is given by rho is equals to kr², ठीक है। And this is the previous year questions of JAM 2018. Now let's discuss next question. Out of this ये भी JAM 2019 में पूछा गया। देखो question is very easy. Out of the following statement, choose the correct options about a perfect conductor. The conductor has an equipotential surface. हमें पता है conductor का equipotential surface होता है, right? The net charge if any resides only on the surface of the conductor. है conductor में सारे बाहर में आ जाते हैं due to electrostatic repulsion. That is also true. Electric field cannot exist inside the conductor. अभी हम लोग just discuss किया कि electrostatic field inside the conductor is zero. Just out the conductor, the electric field is always perpendicular to surface. है outside the conductor, let's say यहाँ पर आप electrostatic field calculate करना चाहते हो तो which will be perpendicular to all its surfaces. So that is all the options are correct. That is answer is A, B, C, D. This is asked in the JAM 2019. देखो sphere, a charge q is at the center of the two concentric spheres, right? A charge q at the centers of the two concentric spheres. So I have two concentric sphere like that. Please excuse me my drawing. So here is a sphere. So inner sphere के लिए जो फ्लक्स आ रहे हैं फाई, जो आउटर स्फीयर है उसके लिए फ्लक्स आ रहे हैं 2 पाई, राइट। इनर के लिए फाई, आउटर के लिए 2 पाई। तो इस यहाँ पर निश्चित रूप से लेट्स से क्यू चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है। तो जिसके लिए आ रहा है आपका फाई, तो क्यू के लिए आ रहा है फाई और बाहर में कितना मिल रहा है हमें, बाहर में मिल रहा है 2 फाई। तो बाहर में 2 फाई मिल रहा है और यहाँ पर फाई है, तो देखो बाहर फ्लक्स मिल रहा है 2 फाई और अंदर से आ रहे कितना फाई। तो देयर मस्ट बी ए चार्ज प्लेस्ड विद इन दिस रीजियन विच इज कंट्रीब्यूटिंग फ्लक्स फाई, तभी तो 5 + 5 2 फाई मैच होगा, तभी तो 5 + 5 2 फाई मैच होगा। जो एक फाई अंदर वाला चार्ज के लिए आ रहे हैं, सो और एक फाई हमें मिलना चाहिए और वो किसके लिए मिलेगा, यहाँ पर कोई एक चार्ज प्रेजेंट होगा विद इन दिस रीजियन। सो वही पूछा है कि द अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेंट इन द रीजन बिटवीन द टू स्फीयर। तो फाई मिल रहा है क्यू चार्ज के लिए और एक फाई किसके लिए मिलेगा, क्यू के लिए ही मिलेगा, और व्हिच इज प्लेस्ड विद इन दिस रीजन ऑफ दिस स्फीयर। सो दैट इज नथिंग बट द क्यू अगेन। तो आंसर क्या होगा क्यू। एक क्यू के लिए मिला है फाई, दूसरा वाला क्यू के लिए मिला है फाई, व्हिच इज ये क्यू है इनसाइड द इनर स्फीयर और ये क्यू है विद इन दिस रीजन। सो टोटल आउटसाइड में हमें मिल रहा है 5 + 5 दैट इज 2 पाई, दैट्स इट, ठीक है। और भी जैम का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस, ये भी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आई थिंक एक बार देख लेना 18 होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज गिवन बाय अल्फा आर हैट प्लस बीटा साइन थीटा cos phi phi cap. What will be the total charge enclosed in the sphere unit radius centered at the origin? देखो खूब इजी है, स्फीयर के लिए आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का वेरिएशन गिवन है, ठीक है। दिस इज अ स्फीयर, दिस स्फीयर, तो इसके लिए आपको गिवन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड गिवन है, तो आप फ्लक्स क्या करोगे, ई डॉट डी एस, दैट्स इट, ई डॉट डी एस। तो ई अल्फा आर हैट प्लस बीटा साइन थीटा कॉस फाई फाई कैप। और आपको पता है डीएस क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में, r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ये आपको पता है ना, 4 पाई r² dr और r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई। हम ऐसे लिखा क्योंकि साइन थीटा कॉस फाई की टर्म में गिवन है और इसका वेक्टर होता है आर हैट। तो एक एरिया एलिमेंट इन द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट इज गिवन बाय दिस r² साइन थीटा डी थीटा डी फाई, ठीक है, आप लोगों को पता है। सो देखो आर हैट और इसका डायरेक्शन है आर हैट, तो आर हैट के लिए 1 होगा और ये फाई हैट और आर हैट की डॉट प्रोडक्ट क्या होगा 0 होगा। सो वी आर गेटिंग दिस ओनली
तो क्या होगा अल्फा इंटू आर स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा इंटू डी फाई, ठीक है। और आर एट 1 हो गया। अब देखो यूनिट रेडियस बोल दिया तो r इज इक्वल्स टू 1, सिंपल। तो इधर पुट कर दिया मैंने, e इज इक्वल्स टू अल्फा, r की जगह 1 और साइन थीटा डी थीटा डी फाई। तो डी फाई के लिए क्या होगा, लिमिट 0 टू 2 पाई, और थीटा के लिए 0 टू पाई। ये सब आपको पता है, स्पेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट जो होता है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इज व्हाट 2 पाई, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा इज व्हाट माइनस कॉस थीटा विच इज 0 टू 2 पाई। अगर पुट करोगे तो cos 0 माइनस cos 2 पाई दैट इज 2। सो 2 इंटू अल्फा इंटू 2 पाई इंटू 2 दैट इज 4 पाई अल्फा। 4 पाई अल्फा कौन से क्वेश्चन में गिवन है आंसर, अच्छा ऑप्शन में मैंने दिया ही नहीं। तो 4 पाई अल्फा इज द राइट आंसर, ठीक है। और ये भी जैम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है रिसेंट, वेरी इजी राइट। सो इनफाइनाइट प्लेन्स के लिए थोड़ा देख लेते हैं, एक सेकंड इसको इरेज कर लेता हूँ। इनफाइनाइट प्लेन के लिए आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई एक इनफाइनाइट प्लेन है, तो इनफाइनाइट प्लेन उस पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा गिवन है, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आता है दैट इज नथिंग बट द E is what, एक सेकंड, हाँ। तो E is what सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, राइट। अगर एक इनफाइनाइट प्लेन लेट से ऐसे प्रेजेंट है आपके पास जहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा गिवन है, तो E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और एन हैट होगा इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट पता है, और अगर ये कॉन्डक्टिंग हो गया तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस आर द थिंग्स बेसिक्स। अगर क्वेश्चन देख लेते हैं आप जो जैम में पूछा गया है, तो मेरे पास एक माइनस सिग्मा चार्ज डेंसिटी का एक प्लेट है, ठीक है। चार्ज डेंसिटी एक इनफाइनाइट प्लेन है, +2 सिग्मा का है और +3 सिग्मा का है, और जो प्लेस्ड है ए 3 और 4 में। देखो एक बार विड्रॉ करता हूँ। एक प्लेट है माइनस सिग्मा विच इज प्लेस्ड अलोंग द वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ए अलोंग द वाई एक्सिस। तो यहाँ पर +2 सिग्मा है, ठीक है, जो पी कितना डिस्टेंस पे है 3a पे, और एक 4a पे +3 सिग्मा। ऐसे करके थ्री इनफाइनाइट प्लेट्स आर प्लेस्ड अलोंग दिस एक्सिस। दिस इज y, ठीक है, दिस इज x एंड दिस इज z। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट द पॉइंट, p 0 टू 2a। तो ये a है 3 है, तो 2a इधर होगा। लेट्स से दिस पॉइंट इज p। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बताओ, ये देखो +2 सिग्मा, तो प्लस चार्ज डेंसिटी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इसके लिए भी इधर डायरेक्शन, इसके लिए भी इधर। तो यहाँ पर देखो, और यहाँ पर माइनस सिग्मा दैट इज माइनस चार्ज प्लेस्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इनवर्ड होगा, क्योंकि प्लस के लिए आउटवर्ड होता है, हमें पता है ना, प्लस चार्ज के लिए आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस, और माइनस के लिए इनवर्ड होता है। तो सिमिलरली इधर क्या होगा, इनवर्ड। तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड देखो, +2 सिग्मा के लिए 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज हमें पता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है एक्चुअली, मगर इधर 2 सिग्मा गिवन है, दैट्स व्हाई 2 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस 3 सिग्मा के लिए 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए भी देखो डायरेक्शन इधर ही है, सबके लिए डायरेक्शन दैट इज इधर, दैट इज माइनस जे कैप। दिस इज व्हाई, सो ऑल द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड अलोंग द माइनस जे कैप प्लस सिग्मा बाई कितना हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या होगा माइनस जे कैप। सो इसको अगर लिख सकते हो कितना आ रहा है, देखो 2 सिग्मा 3 सिग्मा प्लस सिग्मा दैट इज 6 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 3 सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया, और अलोंग माइनस जी कैप। वेरी इजी। इनफाइनाइट प्लेन के लिए, इनफाइनाइट प्लेन अगर उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का एक्सप्रेशन होता है दिस इज द यू नो राइट। नाउ तो क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 इनफाइनाइट प्लेट्स ऐसे हैं प्लेस्ड अलोंग दिस एक्सिस, और जो ए डिस्टेंस पे है, एक माइनस सिग्मा वाला, +2 सिग्मा वाला 3a पे है, और +3 सिग्मा वाला कहाँ पर है 4a पे है। ये 4a था, ठीक है, 4a पे है। तो आपको पूछा गया कि P पॉइंट पे विच इज द कोऑर्डिनेट ऑफ P इज 0, 2a, 0। देखो 0, 2a मतलब x y z, तो 0 क्या होगा 0 यहाँ पर, और 2a मतलब इस पॉइंट पे, P पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है कि माइनस सिग्मा के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पर होगा क्योंकि माइनस है, +2 सिग्मा के लिए इधर होगा, +3 सिग्मा के लिए भी इधर होगा। तो तीनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन इधर मिल रहे हैं। तो सम ऑफ दैट 3
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दैट इज 2 सिग्मा के लिए 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, 3 सिग्मा के लिए 3 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, और इसके लिए सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन, और इंटायर डायरेक्शन क्या होगा माइनस जे, इसको आप कैलकुलेट करके 3 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया. So that's all for today. Thank you very much. We will continue from here. Okay. Join our Telegram group for all the information and keep watching our series to get the good rank in your examinations, JAM, GIST, and other immense entrances. So thank you very much. Thank you. Take care.